نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ نے بجلی کے نرخوں کے حوالے سے ہنگامی اجلاس آج طلب کر لیا۔ نگران وزیراعظم نے عوام کے سخت رد عمل کے بعد بجلی کے بھاری بلوں میں اضافے کا نوٹس لیتے ہوئے وزیراعظم ہاؤس میں ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے، جس میں وزارت بجلی اور تقسیم کار کمپنیوں کو تفصیلی بریفنگ دینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اجلاس میں صارفین کو بجلی کے بلوں سے متعلق زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے پر مشاورت کی جائے گی۔ بجلی کے بلوں میں اضافے پر ملک بھر میں عوام سراپا احتجاج ہیں۔ کراچی، راولپنڈی، ملتان، گوجرانوالہ اور پشاور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں مظاہرے جاری ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں بجلی کے اضافی بل عوام کی برداشت سے باہر ہو گئے۔ غریب عوام 2 وقت کی روٹی پوری کریں یا بجلی کے بھاری بل جمع کرائیں۔ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی کی جائے اور ٹیکس بھی ختم کیا جائے۔ دوسری جانب تاجروں نے بھی بجلی کے بھاری بلز اور ٹیکسوں کی بھرمار کے خلاف شٹر ڈاؤن کا اعلان کیا۔ بجلی کے بھاری بھرکم بلوں سے بلدیہ عظمیٰ کراچی بھی پریشان ہو گئی اور ماہانہ 1.25 کروڑ روپے کی بچت کا نیا منصوبہ تیار کر لیا۔ کراچی کے 106 مرکزی شاہراہوں پر لگی اسٹریٹ لائٹس کا ماہانہ بل لگ بھگ 1 کروڑ 25 لاکھ روپے آتا ہے، جس کی بچت کے لیے بلدیہ عظمیٰ کراچی نے اہم شاہراہوں پر سولر اسٹریٹ لائٹس نصب کرنے کا فیصلہ کیا۔ خیبر پختونخوا کے 21 اضلاع میں 65 ولیج اور نیبرہڈ کونسلوں کی مدد خالی مجلسوں پر ضمنی بلدیاتی انتخابات پر پولنگ کا آغاز ہو گیا ہے۔ صبح 8 بجے پولنگ کا آغاز ہو گیا، جو بغیر وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ کے پی کے ضلع پشاور، نوشیرہ، چارسدہ، خیبر، مردان، کوہاٹ، بنوں، لکی مروت، ڈی آئی خان ٹانگ، کیپٹ آباد، ہری پور، مانسیرہ، بدگرام، طورخر، سوات، شانکرہ، مالاکٹ، دیر اپر، دیر لوئر اور باجوڑ اضلاع میں ضمنی بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے۔ مسلم لیگ نون کی لندن میں بڑوں کی بیٹھک۔ عام انتخابات میں نون لیگ کی جانب سے مصالحانہ کے بجائے جارحانہ انداز اپنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق آئندہ عام انتخابات میں نون لیگ انتخابی مہم میں اپنے ساتھ ہونے والی انتقامی کارروائیوں کو ڈاکیومنٹری کی صورت میں سامنے لائے گی۔ انتخابی مہم میں سابقہ چند اہم شخصیات کو ہدف تنقید بنایا جائے گا۔ پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ مریم نواز انتخابی مہم میں بڑی اہم شخصیات کی خفیہ آڈیوز اور نواز شریف کے خلاف کی گئی سازش کو بے نقاب کریں گی۔ رانی پور میں پیر کی حویلی میں تشدد سے کمسن بچی فاطمہ کی ہلاکت کیس کے 4 ملزمان کو پولیس نے چھوڑ دیا۔ پولیس کے مطابق رہا کیے جانے والوں میں ایس ایچ او امیر چاند، ڈاکٹر فتح میمن، ڈاکٹر علی حسن وسان اور کمپاؤنڈر امتیاز شامل ہیں۔ تفتیشی افسر نے دعویٰ کیا کہ 4 ملزمان کو بے گناہی کے ثبوت پیش کرنے پر چھوڑا گیا۔ مرکزی ملزم اسد شاہ کے جسمانی ریمانڈ میں گزشتہ روز عدالت نے 3 روز کی توسیع کی تھی۔ کمسن فاطمہ کی موت رانی پور میں پیر کی حویلی میں ہوئی تھی، جس کی ویڈیو منظر عام پر آئی تھی۔ بھارت نے دریا ستلج میں چوتھا سیلابی ریلا چھوڑ دیا، جس سے دریا ستلج میں سیلابی صورتحال مزید سنگین ہونے کا خدشہ ہے۔ سیلابی ریلوں کے باعث پاک وطن قصور، بہاول نگر، بہاولپور، لودھنا اور ریہاڑی کی دریائی پٹی پر سینکڑوں دیہات پہلے ہی زیرآب ہیں اور فصلیں ڈوبی ہوئی ہیں۔ متاثرہ علاقوں کے مکین گھر بار چھوڑ کر کیمپوں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ بہاولپور میں پانی کے دباؤ سے ایمپریس برج کا بند ٹوٹ گیا۔ محکمہ موسمیات نے خیبر پختونخوا بالائی پنجاب میں بارش کا امکان ظاہر کر دیا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، جبکہ خطہ پوٹھہار، اسلام آباد، بالائی پنجاب میں بارش کی توقع ہے۔ بالائی علاقوں خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹے میں خیبر پختونخوا، پنجاب، اسلام آباد اور کشمیر میں بارش ہوئی اور ملک کے کچھ علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا۔
اور بھارتی کرکٹ بورڈ کے صدر راجیو بنی نے دورہ پاکستان کی تصدیق کر دی۔ ایک بیان میں راجیو بنی نے کہا کہ میں اور نائب صدر راجیو شکلا 4 ستمبر کو پاکستان پہنچیں گے۔ پاکستان میں سرکاری اشائیے کے علاوہ ایشیا کپ میچز بھی دیکھیں گے۔ راجیو بنی کا کہنا ہے کہ مجھے پاکستان جانے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں، میرا پاکستان کا دورہ ہمیشہ یادگار رہا۔ پاکستان بہت مہمان نواز ہے۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں اقصیٰ خان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ ہمیں خدشہ ہے کہ بجلی کے بلوں پر احتجاج فسادات میں تبدیل نہ ہو جائے، بلوں میں اضافی فوری واپس لیا جائے۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ ہم نے مذاکرات کا وعدہ کیا تھا اور اس پر عمل کرتے رہیں گے۔ کراچی کو وابچہ کی ذمہ داری سے دور اور باہر رکھا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکار ڈیٹ کا دباؤ کے الیکٹرک کے مالکان پر نہیں، صارفین پر آ رہا ہے۔ فوری ریلیف کے اقدامات کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ حیدرآباد میں 12 سے 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ حیدرآباد کے تاجر احتجاج پر مجبور ہو رہے ہیں۔ 12 سے 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور بل وہی آ رہا ہے۔ ہم نے پہلے بھی ایوانوں میں بات کی ہے، اب بھی بات کریں گے۔ اس موقع پر ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ ملک تیزی سے افراتفری کی جانب جا رہا ہے، بجلی کے بلوں میں اضافہ عوام کی پہنچ سے باہر ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2000 کے بجلی کے بل میں 48% ٹیکس ہے۔ دنیا میں بجلی استعمال کرنے پر ٹیکس نہیں ہوتا، بجلی کے بل پر 13 قسم کے ٹیکسز ہیں۔ لوگوں میں بغاوت کا رجحان آ رہا ہے اور لوگ باغی ہوتے جا رہے ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما کا مزید کہنا تھا کہ ملک سول نافرمانی کی جانب جا رہا ہے، اگر یہی رجحان رہا تو اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ بنے گی۔ ملک کے تاجروں کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ ملک کے کئی شہروں میں حالیہ دنوں کے دوران بجلی کے بھاری بلوں کے خلاف عوام نے احتجاج کیا تھا۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ خالد مقبول صدیقی نے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ ہمیں خدشہ ہے کہ بجلی کے بلوں پر احتجاج فسادات میں تبدیل نہ ہو جائیں، بلوں میں اضافہ فوری واپس لیا جائے۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ ہم نے مذاکرات کا وعدہ کیا تھا اور اس پر عمل کرتے رہیں گے۔ کراچی کو وابطہ کی ذمہ داری سے دور اور باہر رکھا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکار ڈیٹ کا دباؤ کے الیکٹرک کے مالکین پر نہیں، صارفین پر آ رہا ہے۔ فوری ریلیف کے اقدامات کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ حیدرآباد میں 12 سے 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ حیدرآباد کے تاجر احتجاج پر مجبور ہیں۔ 12 سے 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور بل وہی آ رہا ہے۔ ہم نے پہلے بھی ایوانوں میں بات کی ہے، اب بھی بات کریں گے۔ اس موقع پر ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ ملک تیزی سے افراتفری کی جانب جا رہا ہے۔ دوسری جانب نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے بجلی کے نرخوں کے حوالے سے ہنگامی اجلاس آج طلب کر لیا۔ نگران وزیر اعظم نے عوام کے سخت رد عمل کے بعد بجلی کے بھاری بلوں میں اضافے کا نوٹس لیتے ہوئے وزیر اعظم ہاؤس میں ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے، جس میں وزارت بجلی اور تقسیم کار کمپنیوں کو تفصیلی بریفنگ دینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اجلاس میں صارفین کو بجلی کے بلوں سے متعلق زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے پر مشاورت کی جائے گی۔ بجلی کے بلوں میں اضافے پر ملک بھر میں عوام سراپا احتجاج ہے۔ دوسری جانب کراچی، راولپنڈی، ملتان، گجرانوالہ اور پشاور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں مظاہرے جاری ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں بجلی کے اضافی بل عوام کی برداشت سے باہر ہو گئے۔ غریب عوام 2 وقت کی روٹی پوری کرے یا بجلی کے بھاری بل جمع کرائے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی کی جائے اور ٹیکس بھی ختم کیا جائے۔ دوسری جانب تاجروں نے بھی بجلی کے بھاری بلز اور ٹیکسوں کی بھرمار کے خلاف شٹر ڈاؤن کا اعلان کیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے بجلی کے نرخوں کے حوالے سے ہنگامی اجلاس آج طلب کر لیا۔ نگران وزیر اعظم نے عوام کے سخت رد عمل کے بعد بجلی کے بھاری بلوں میں اضافے کا نوٹس لیتے ہوئے وزیر اعظم ہاؤس میں ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے، جس میں وزارت بجلی اور تقسیم کار کمپنیوں کو تفصیلی بریفنگ دینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اجلاس میں صارفین کو بجلی کے بلوں سے متعلق زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے پر مشاورت کی جائے گی۔
दूसरी जानिब नाज़रीन आपको बताएं कि बिजली के भारी भरकम बिलों से बल्दिया उस्मा कराची भी परेशान हो गई है और माहाना 1.25 करोड़ रुपए की बचत का नया मंसूबा तैयार कर लिया है। कराची की 106 मरकजी शाहराहों पर लगी स्ट्रीट लाइट्स का माहाना बिल लगभग 1 करोड़ 25 लाख रुपए आता है, जिसकी बचत के लिए बल्दिया उस्मा कराची ने अहम शाहराहों पर सोलर स्ट्रीट लाइट्स नस्ब करने का फैसला किया है। तो दूसरी जानिब मौशी तज्जियाकारों ने बिजली के बिलों में फौरी कमी का नुस्खा भी बता दिया है। माहिर मौशियात फरूख सलीम का कहना है कि बिजली के बिलों में 30% मुख्तलिफ हुकूमती टैक्सेस हैं, जिन्हें कम करके अवाम को फौरी रिलीफ दिया जा सकता है। इस कमी को बराह रास्त टैक्स लगा के पूरा किया जाए। उसके अलावा मौशी तज्जियाकार खाकान नजीब ने गर्मी में आए बिलों को किस्तवार वसूल करने की तजवीज पेश की और बताया कि बिलों में एक हिस्सा 18% GST का है। इसमें कमी के लिए IMF से दोबारा बातचीत की जाए। आपको बताते चले कि बिजली के भारी भरकम बिलों से बल्दिया उस्मा कराची भी परेशान हो गई और माहाना 1.25 करोड़ रुपए की बचत का नया मंसूबा तैयार कर लिया। कराची के 106 मरकजी शाहराहों पर लगी स्ट्रीट लाइट्स का माहाना बिल लगभग 1 करोड़ 25 लाख रुपए आता है, जिसकी बचत के लिए बल्दिया उस्मा कराची ने अहम शाहराहों पर सोलर स्ट्रीट लाइट्स नस्ब करने का फैसला किया है। दूसरी जानिब माशी तज्जियाकारों ने बिजली के बिलों में फौरी कमी का नुस्खा भी बता दिया। माहिर माशियात फरूख सलीम का कहना है कि बिजली के बिलों में 30% मुख्तलिफ हुकूमती टैक्सेस हैं, जिन्हें कम करके अवाम को फौरी रिलीफ दिया जा सकता है। खबर शामिल करें हुजरा शाह मुकीम से, जहां बिजली बिलों में जालिमाना टैक्स और बढ़ती कीमतों के खिलाफ भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड किया गया। बिजली के बिलों में बेतहाशा टैक्सों के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आए। शहरियों ने बिजली के बिल चला दिए। मुआवजा और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी रिकॉर्ड की गई। मुजाहिरीन ने कहा कि बिजली के बिलों से बेचा टैक्स खत्म करने और बिजली के रेट्स कम करने तक बिल अदा नहीं करेंगे। हुकूमत बिजली की कीमतों में इजाफी फिलफोर वापस दे और शहरियों का मौशी कत्ले आम बंद करें। आपको अपडेट करते चले हुजरा शाह मुकीम की सूरत हाल के हवाले से। तो बिजली बिलों में जालिमाना टैक्स और बढ़ती कीमतों के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया गया। बिजली के बिलों में बेतहाशा टैक्सों के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आए। शहरियों ने बिजली के बिल चला दिए। मुआवजा और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी रिकॉर्ड की गई। मुजाहिरीन ने कहा कि बिजली के बिलों से बेचा टैक्स खत्म करने और बिजली के रेट्स कम करने तक बिल अदा नहीं करेंगे। हुकूमत बिजली की कीमतों में इजाफा फिलफोल वापस ले और शहरियों का मौशी कत्ले आम बंद करे। नाज़रीन आपको बताएं कि तवक्कुआत से कहीं बढ़कर बिजली के बिल आने पर मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज आज भी जारी है। लाहौर में बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ शादरा के रहायशियों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने बिजली के बिल चलाए और महंगी बिजली के खिलाफ खूब नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि बिजली की कीमतों में कमी की जाए। उधर नौशेरा में बिजली के बिलों में टैक्सों के खिलाफ अंजुमन ताजरान ने एहतजाज किया। रिसालपुर में ताजिरों ने बिलों में इजाफी टैक्सों के खिलाफ एहतजाजन दुकानों को ताले लगा दिए। एहतजाज के बायस नौशेरा मर्दान रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। इसके अलावा सरगोदा, कमालिया, चूनिया और रहीम यार खान में भी एहतजाजी मुजाहरे किए गए। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि तवक्कुआत से कहीं बढ़कर बिजली के बिल आने पर मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज आज भी जारी है। लाहौर में बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ शादरा के रहायशियों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने बिजली के बिल जलाए और महंगी बिजली के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुआवजा के जालिमाना इकदाम के खिलाफ शहर शहर एहतजाज जारी है। मुआवजा के इजाफी बिलों के खिलाफ शहरियों ने KLP रोड सिंध और पंजाब को मिलाने वाली कौमी शाहरा ब्लॉक कर दी। रोड ब्लॉक होने से मेन कराची हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन की हुकूमत और मुआवजा के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई है। बिजली के बिलों से जालिमाना इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया गया है। मुजाहिरीन के एहतजाज के बाद सिंध जाने और पंजाब की तरफ आने वाली ट्रैफिक बुरी तरह ब्लॉक रही है। आपको अपडेट कर रहे हैं। ताज़ा तरीन खबर है कि मुआवजा के जालिमाना इकदाम के खिलाफ शहर शहर एहतजाज जारी है। मुआवजा के इजाफी बिलों के खिलाफ शहरियों ने KLP रोड सिंध और पंजाब को मिलाने वाली कौमी शाहरा ब्लॉक कर दी। रोड ब्लॉक होने से मेन कराची हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मुजाहिरीन की हुकूमत और मुआवजा के खिलाफ शदीद नारेबाजी रिकॉर्ड की गई। बिजली के बिलों से जालिमाना इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया गया। पूरे मुल्क की तरह सादकाबाद में भी बिजली के बिलों में लगाए गए इजाफी टैक्सेस के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आए। ताजिर, वकला बरादरी और शहरियों की कसीर तादाद रैली में मौजूद है।
मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे सुहेल नदीम से। जी सुहेल, बताइएगा क्या मुतालबा है शहरियों का? जी बिल्कुल, मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह सादिकाबाद में भी आज जो है वो बिलों के इजाफी टैक्सेस के हवाले से जो है वो आज एक रैली निकाली गई है, जो मोबाइल मार्केट से शुरू होती हुई प्रेस क्लब पर इख्तिताम पजीर हुई है। मेरे साथ इस वक्त बार एसोसिएशन के सदर मियां अब्दुल रफीक साहब मौजूद हैं। आइए मजीद इनसे जानते हैं कि इनका क्या मुतालबात हैं और ये क्या कहना चाहते हैं हुकूमत वक्त से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बार एसोसिएशन सादकाबाद की नुमाइंदगी करते हुए इस वक्त प्रेस क्लब सादकाबाद में मौजूद हूँ। तो मेरी हुकाम बाला से और अरबाब इख्तियार से ये गुजारिश है कि आपने जो ज़ालमाना टैक्सेस और टैरिफ बढ़ाकर जो गरीब आवाम के ऊपर जुल्म किया है, इन टैक्सेस को और इन भारी बिलों को फिलफौल वापस लिया जाए और आइंदा के लिए भी आवाम के साथ ताउन किया जाए, और जो गरीब आवाम जो बिल अदा नहीं कर सकते उनको बिलों में रिलीफ दिया जाए, उनके मीटर ना काटे जाएँ। और अगर अरबाब इख्तियार और हुकूमत वक्त ने हमारे मुतालबात ना माने तो जैसा आज हम सड़कों पर हैं, आइंदा इसे हम मज़ीद लाहेअमल तैयार करेंगे और लास्ट इक़दाम पर मजबूर होंगे। शुक्रिया। जी, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना है कि जो हुकूमत ने जो इजाफी टैक्स जो गरीब आवाम पे लगाए हैं, इसको फिलफौर ख़त्म किया जाए। अगर ये हुकूमत ने तो ये टैक्स। दूसरी जानिब जतोई शहर सुल्तान में राई इत्तेहाद और जमात इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम पेट्रोल बिजली गैस के जालिमाना टैक्स के खिलाफ भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। जमात इस्लामी के रहनुमा एडवोकेट सरदार जाहिद खान गोकपांग ने कहा कि रियासत माँ जैसी है और बदकिस्मती से पाकिस्तान हुकूमत ने डिकेट का रूप धार लिया है। जतोई अराई इत्तेहाद के सीनियर रहनुमा मलिक असगर हुसैन ने कहा कि हुक्मरानों की अयाशियों का बोझ अब गरीब आवाम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। एहतजाज में लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। एहतजाज में मुजाहिरीन ने बिजली गैस के बिल भी नजरियातिश कर दिया। आपको बताते चले इस हवाले से कि जतोई शहर सुल्तान में राय इत्तेहाद और जमात इस्लामी के जेरे एहतमाम पेट्रोल बिजली गैस के जालिमाना टैक्स के खिलाफ भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। जमात इस्लामी के रहनुमा एडवोकेट सरदार जाहिद खान गोपांग ने कहा कि रियासत माँ जैसी है और बदकिस्मती से पाकिस्तान हुकूमत ने डकैत का रूप धार लिया है। जून में बिजली के महंगे बिल सखर में जहां जहां आए वहां वहां सखर के शहरी बाहर निकल आए। सखर में महंगे बिलों के खिलाफ शहरियों का एहतजाजी मुजाहरा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ घंटा घर पर धरने की शक्ल इख्तियार कर गया। शहरियों ने महंगे बिलों में रिलीफ देने का मुतालबा करते हुए सेप्को के खिलाफ भरपूर नारेबाजी भी रिकॉर्ड की है। आपको बताते चले कि बिजली के बिलों में इजाफे में शहरी हर तरह से सरापा एहतजाज है। सखर में महंगे बिलों के खिलाफ शहरियों का एहतजाजी मुजाहरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ घंटा घर पर धरने की शक्ल इख्तियार कर गया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई के वाकयात में मुलविस अफराद से लातालुकी का इजहार कर दिया है। जराये के मुताबिक 9 मई के वाकयात की तहकीकात के लिए कायम मुश्तरका तहकीकाती टीम ने जुमे के रोज अटक जेल में चेयरमैन तहरीक इंसाफ से 6 मुकदमात में तफ्तीश की। DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर समेत पूरी JIT टीम ने साबिक वजीर आजम से सवालात किए। JIT ने पूछा कि 9 मई के बारे में आपकी जानिब से इश्तियाल दिलाने के शाहिद मौजूद हैं। चेयरमैन PTI ने जवाब दिया कि मैं गिरफ्तार हो गया था, किसी को फोन करके इश्तियाल नहीं दिलाया। JIT ने सवाल किया कि ऐसी वीडियोस और क्लिप्स हैं जिनमें मुजाहिरीन आपका नाम लेते नजर आते हैं, जिस पर साबिक वजीर आजम ने जवाब दिया कि किसी को नहीं उकसाया, सब अपने तौर पर कैंटोनमेंट के इलाके में गए। जलाओ घेराव में मेरी पार्टी के कारकुन नहीं कोई और अफराद थे। JIT ने चेयरमैन PTI से जुमे को आधा घंटा अटक जेल में तफ्तीश की। चेयरमैन PTI पर 9 मई से मुतल्लिक दहशतगर्दी के 6 मुकदमात दर्ज हैं। आपको बताते चले इस हवाले से कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई के वाकयात में मुलविस अफराद से लातालुकी का इजहार कर दिया। जराये के मुताबिक 9 मई के वाकयात की तहकीकात के लिए कायम मुश्तरका तहकीकाती टीम ने जुमे के रोज अटक जेल में चेयरमैन तहरीक इंसाफ से 6 मुकदमात में तफ्तीश की। खैबर पख्तूनख्वा के 21 अजला में 65 विलेज और नेबरहुड काउंसिलों की मुतादिद खाली नशिस्तों पर ज़मीनी बल्दियाती इंतखाबात पर पोलिंग का आगाज हो गया है। सुबह 8 बजे पोलिंग का आगाज किया गया।
जो बगैर वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। KPK के जिला पेशावर, नौशेरा, चारसदा, खैबर मर्दान, कोहाट, बन्नू, लकी मरवर, DI खान, टांग, कैप्टाबाद, हरीपुर, मानसेरा, बटकराम, तोरकर, सवा, शांगला, मालाकंड, दीर अपर, दीर लोयर और बाजोड़ अजला में जमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। जमनी इंतखाबात के लिए 256 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जबकि मजमूई तौर पर 3,85,835 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 256 पोलिंग स्टेशन में 159 को हसास तरीन जबकि 84 को हसास करार दिया गया है और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि खैबर पख्तूनख्वा के 21 अजला में 65 विलेज और नेबरहुड काउंसिलों की मुताबिक खाली नशिस्तों पर जमनी बल्दियाती इंतखाबात पर पोलिंग का आगाज हो गया है। सुबह 8 बजे पोलिंग का आगाज किया गया, जो बगैर वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की लंदन में बड़ों की बैठक है। आम इंतखाबात में नून लीग की जानिब से मुसालिहाना की बजाय जारहाना अंदाज अपनाने का फैसला किया गया है। जराये के मुताबिक आइंदा आम इंतखाबात में नून लीग इंतखाबी मुहिम में अपने साथ होने वाली इंतकामी कार्रवाइयों को डॉक्यूमेंट्री की सूरत में सामने लाएगी। इंतखाबी मुहिम में साबका चंद अहम शख्सियात को हदफ तनकीद बनाया जाएगा। पार्टी जराये का कहना है कि मरियम नवाज इंतखाबी मुहिम में बड़ी अहम शख्सियात की खुफिया ऑडियोज और नवाज शरीफ के खिलाफ की गई साजिश को बेनकाब करेंगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज अपने साथ होने वाली साजिश के पसे पर्दा मुहर्रकात को सामने लाएंगे। मुस्लिम लीग नून ने फैसला किया है कि शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज अवामी इज्तिमात में मुसालिहाना रवैया अपनाएंगे। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अपने दौर के तरक्याती मंसूबों पर बात करेंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी से कबल सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भरपूर मुहिम चलाई जाएगी। किसी भी सियासी जमात से इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट का फैसला नवाज शरीफ करेंगे। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि मुस्लिम लीग नून की लंदन में बड़ों की बैठक है। आम इंतखाबात में नून लीग की जानिब से मुसालिहाना की बजाय जारहाना अंदाज अपनाने का फैसला किया गया है। जराये के मुताबिक आइंदा आम इंतखाबात में नून लीग इंतखाबी मुहिम में अपने साथ होने वाली इंतकामी कार्रवाइयों को डॉक्यूमेंट्री की सूरत में मंजरियां पर लाएगी। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा कि 16 महीने मौज मेला करने वाले और कपड़े बेचकर रिलीफ देने वाले अवाम को तकलीफ देकर लंदन भाग गए हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में शेख रशीद का कहना था कि बड़े लोग बिजली चोरी करते हैं और बोझ सारा गरीबों के बिलों पर डाल दिया जाता है। अगले महीने पेट्रोल और बिजली का बिल आग पर पेट्रोल डालेगा। इलेक्शन वक्त पर होंगे या नहीं, इससे ज्यादा अहम और संगीन मसला अगले महीने लोगों के लिए पेट्रोल और बिजली का बिल अदा करना है। साबिक विफाकी वजीर ने कहा कि लोग बगैर किसी लीडर और जमात के सड़कों पर आ गए हैं और सितमगर साबित हो सकता है। 16 महीने मौज मेला करने वाले और कपड़े बेचकर रिलीफ देने वाले अवाम को तकलीफ देकर लंदन भाग गए हैं। निगरान हुकूमत क्या करेगी? उनका कहना था कि अवाम का नाम ही रियासत है। अवाम सिविल नाफरमानी की तरफ बढ़ रही है। बिजली का बिल दुगना हो गया है और अगले महीने शायद ये मसला संगीन हो जाए। अवाम का रद्द-ए-अमल सियासी नहीं कुदरती है, क्योंकि उनके पास वसाइल ही नहीं कि वो आटा खरीदे, बिजली का बिल दे, मकान का किराया या और बच्चों की फीस भी दे। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग ने मजीद कहा कि सारी इलेक्ट्रिक कंपनियों ने अपनी गाड़ियों की नंबर प्लेट्स भी खौफ के मारे हटा दी हैं। फाइलर और नॉन फाइलर में कोई फर्क नहीं रहा, दोनों को किसी न किसी तरीके से टैक्स देना पड़ रहा है। भूख से मारे लोग रेस्क्यू 15 पर कॉल कर रही हैं। जितना रुपया गिरेगा वो सारा बोझ आम आदमी पर पड़ेगा। रानीपुर में पीर की हवेली में तशद्दुद से कमसिन बच्ची फातिमा के हिलाकत केस के 4 मुल्जिमान को पुलिस ने छोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक रिहा किए जाने वालों में SHO अमीर चांग, डॉक्टर फतेह मेमन, डॉक्टर अली हसन वसान और कंपाउंडर इम्तियाज शामिल हैं। तफ्तीशी अफसर ने दावा किया कि चारों मुल्जिमान को बेगुनाही के सबूत के पेश करने पर छोड़ा गया है। चारों मुल्जिमान ने अपनी बेगुनाही के सबूत DSP अब्दुल कुद्दूस के सरबराही में कायम कमेटी को पेश किए।
انہوں نے کہا کہ چاروں ملزمان تاحال شامل تفتیش ہیں لیکن انہیں پولیس تحویل سے رہا کر دیا گیا ہے۔ پولیس کیس میں نامزد مرکزی ملزم اسد شاہ کی اہلیہ ہنا شاہ کو بھی تاحال گرفتار نہیں کر سکی، جبکہ ہنا شاہ کے والد فیاض شاہ بھی پولیس کی گرفت میں نہیں آ سکے۔ چاروں افراد پر حقائق چھپانے، جرم چھپانے اور فرائض میں غفلت کے الزامات تھے۔ مرکزی ملزم اسد شاہ کے جسمانی ریمانڈ میں گزشتہ روز عدالت نے 3 روز کی توسیع کی تھی۔ گمسن فاطمہ کی موت رانی پور میں پیر کی حویلی میں ہوئی تھی، جس کی ویڈیو منظر عام پر آئی۔ خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ امریکی ریاست منیسوٹا میں مقیم پاکستانی ڈاکٹر محمد مسعود کو دہشت گردی کے الزام میں 18 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ امریکی میڈیا کے مطابق 31 سالہ پاکستانی ڈاکٹرز نے دہشت گرد تنظیم داعش کے لیے کام کرنے کے ارادے کا اعتراف کر لیا۔ پاکستانی ڈاکٹر محمد مسعود منیسوٹا کی میڈیکل کمپنی کے لیے کام کر رہا تھا۔ محمد مسعود H-1B ویزے پر امریکہ آیا تھا۔ جنوری سے مارچ 2020 میں دہشت گرد تنظیم داعش میں شمولیت اور اس کے لیے اردن جانے کے ارادے کا اظہار کیا گیا۔ محمد مسعود کو مارچ 2020 میں منی ایپلس ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ گزشتہ سال اگست میں پاکستانی ڈاکٹر نے اعتراف کیا تھا کہ وہ دہشت گرد تنظیم کی معاونت ارادہ رکھتا تھا۔ امریکی FBI کے جوائنٹ ٹیررسٹ ٹاسک فورس نے تحقیقات میں حصہ لیا تھا۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ امریکی ریاست منیسوٹا میں مقیم پاکستانی ڈاکٹر محمد مسعود کو دہشت گردی کے الزام میں 18 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ امریکی میڈیا کے مطابق 31 سالہ پاکستانی ڈاکٹر نے دہشت گرد تنظیم داعش کے لیے کام کرنے کے ارادے کا اعتراف کر لیا ہے۔ پاکستانی ڈاکٹر محمد مسعود منیسوٹا کی میڈیکل کمپنی کے لیے کام کر رہا تھا۔ محمد مسعود H-1B ویزے پر امریکہ آیا تھا۔ جنوری سے مارچ 2020 میں دہشت گرد تنظیم داعش میں شمولیت اور اس کے لیے اردن جانے کے ارادے کا اظہار کیا گیا۔ افسوسناک خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے کے یوم آباد سے کے پچے کے قریب کار الٹنے سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی۔ حادثے میں ایک شخص زخمی بھی ہوا ہے۔ ریسکیو کے مطابق زخمی شخص کی شناخت 30 سالہ نبیل کے نام سے ہوئی ہے، جس کو تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے کہ جاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت 20 سالہ ایمان کے نام سے ہوئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں افسوسناک خبر کے حوالے سے کہ کراچی کے علاقے کیوم آباد کے پچے کے قریب کار الٹنے سے ایک شخص جان کی بازی ہار گیا۔ تفصیلات کے مطابق حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں۔ حادثے میں ایک شخص زخمی بھی ہوا ہے۔ ریسکیو کے مطابق زخمی شخص کی شناخت 30 سالہ نبیل کے نام سے ہوئی ہے، جس کو تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اور اب کچھ بات سیلابی صورتحال کی تو بھارت نے دریائے ستلج میں چوتھا سیلابی ریلا چھوڑ دیا، جس سے دریائے ستلج میں سیلابی صورتحال مزید سنگین ہونے کا خدشہ ہے۔ سیلابی ریلوں کے باعث پاکپتن، قصور، بہاول نگر، بہاولپور، لودھرا اور بہاڑی کی دریائی پٹی پر سینکڑوں دیہات پہلے ہی زیر آب ہیں اور فصلیں ڈوبی ہوئی ہیں۔ متاثرہ علاقوں کے مکین گھر بار چھوڑ کر کیمپوں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ بہاولپور میں پانی کے دباؤ سے ایمپریس برج کا بند ٹوٹ گیا، جس سے 6 بستیوں میں پانی داخل ہو گیا اور فصلیں متاثر ہوگی۔ ریلا احمد پور شرقیہ کے دریائے بیلج کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ سیلابی صورتحال ہے۔ بھارت نے دریائے ستلج میں چوتھا سیلابی ریلا چھوڑ دیا، جس سے دریائے ستلج میں سیلابی صورتحال مزید سنگین ہونے کا خدشہ ہے۔ سیلابی ریلوں کے باعث پاکپتن، قصور، بہاول نگر، بہاولپور، لودھرا اور بہاڑی کی دریائی پٹی پر سینکڑوں دیہات پہلے ہی زیر آب ہیں اور فصلیں ڈوبی ہوئی ہیں۔ متاثرہ علاقوں کے مکین گھر بار چھوڑ کر کیمپوں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ وہیں دوسری جانب قبولہ شریف میں بھی دریائے ستلج کی تباہ کاریاں تیزی سے جاری ہیں۔ دریائے ستلج کے مقام پر بھوکا پتن، نورا رت، کرن شمس، موزہ ڈھڑ بستیاں تیز پانی کے ریلے میں ڈوب گئی ہیں۔ اڈا جملیرا کی حدود میں ایک شخص ڈوب کر جاں بحق ہو گیا۔ پولیس سمیت ریسکیو 1122 کی امدادی سرگرمیاں سیلاب زدگان کے لیے تیزی سے جاری ہیں۔ پولیس تھانہ قبولہ کے افسر ملک اسلم نے کہا کہ متاثرہ علاقوں سے عوام کو نکالنے میں دن رات مدد کر رہے ہیں۔ علاقے کی عوام نے پولیس اور ریسکیو کی خدمات کو خوب سراہا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں سیلابی صورتحال کے حوالے سے تو قبولہ شریف میں دریائے ستلج کی تباہ کاریاں تیزی سے جاری ہیں۔ دریائے ستلج کے مقام پر بھوکا پتن، نورا رت، کرن شمس، موزہ ڈھڑ
बस्तियां तेज पानी के रैले में डूब गई। अड्डा जमलीरा की हदूद में एक शख्स डूबकर जाँ बहक हो गया। पुलिस समेत रेस्क्यू 1122 की इमदादी सरगर्मियां सैलाब सदकान के लिए तेजी से जारी हैं। नाज़रीन, अब कुछ बात मौसम की तो महकमे मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा बलाई पंजाब में बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया है। महकमे मौसमियात का कहना है कि मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, जबकि खित्ता पोटोहार, इस्लामाबाद, बलाई पंजाब में बारिश की तवक्को है। बलाई इलाकों खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात का कहना है कि 24 घंटे में खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, इस्लामाबाद और कश्मीर में बारिश हुई और मुल्क के कुछ इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दालबंदी नौकुंडी में 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। आपको अपडेट करते चले मौसम की सूरत हाल के हवाले से तो महकमे मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा, बलाई पंजाब में बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया है। महकमे मौसमियात का कहना है कि मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, जबकि खित्ता पोटोहार, इस्लामाबाद, बलाई पंजाब में बारिश की तवक्को है। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा होंगी। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खबर शामिल करें विहाड़ी से, जहां दरिया सतलुज हेड इस्लाम के मकाम पर रेस्क्यू टीमों का कामयाब ऑपरेशन हुआ। सैलाब में फंसे बारातियों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। रेस्क्यू जवानों ने दरिया सतलुज की तेज लहरों और गहरे पानियों से निकालकर दूल्हा और बारात को दुल्हन वाले घर पहुंचा दिया। दूल्हा खुशी से निहाल हो गया। हर तरफ खुशियों के शादियाने बज उठे। रेस्क्यू जिंदाबाद के नारे लगाए गए। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। विहाड़ी दरिया सतलुज के सैलाबी पानी ने जहां एक सैकड़ों बस्ती को तबाह कर दिया और हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेरे आब आ गईं, वहीं बंद टूटने से बस्ती महीना वाली में भी पानी दाखिल हो गया। बस्ती का रहायशी अब्दुल करीम की शादी 26 अगस्त को तय थी और वो बारात लेकर निकला ही था कि सैलाबी बारिश दरियाओं की कटाव की वजह से बारात सैलाबी पानी में फंस गई, जिसकी इतला रेस्क्यू 1122 को मिली। इसके जवानों ने सैलाब में दरियाए सतलुज की तेज लहरों और गहरे पानी से दूल्हों को बारातियों को बाहिफाजत निकाल कर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। दूल्हा अब्दुल करीम दूल्हे वाला सूट, शेरवानी और हार पहने इंतहाई मसरूर लग रहा था और कश्तियों में आती बारात देखकर इसकी गमजदा माहौल में अहला इलाका के चेहरे भी खुशियों से खिल उठे। रेस्क्यू 1122 की तरफ बारातियों को खाना भी दिया गया। इस मौके पर लोगों ने रेस्क्यू 1122 की टीम का शुक्रिया अदा किया। रेस्क्यू जिंदाबाद के नारे लगाए गए। कैमरामैन अली हसनैन के साथ मियां आमिर। बहावल नगर में दरिया सतलुज के सैलाबी रैले से मुतासिर भोका पतन के किसान निगरान हुकूमत की मदद के मुंतजिर हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे शहबाज प्रिंस से। जी शहबाज, बताइएगा क्या सूरत हाल है वहाँ की? मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावल नगर के दरियाए सतलुज भुक्का पतन के मकाम पर, जो उसके मुल्हिका बादियाँ जो हैं वहाँ पर हम पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं कि सैलाब ने कितने मकानों को मुतासर किया है। ये पिंड जो है बसारा बुक भी कहा जाता है, इसके नज़दीक बिल्कुल ये पिंड है। आप देखें मेरे, आप देख सकते हैं कि सैलाब ने जो है सैलाब के नज़र हो चुका है। सारे मकानात जो हैं वो डूब चुके हैं, मुतअद्दिद आबादियाँ भी डूब चुकी हैं, कई आर्जी बंद भी टूटे हुए हैं, फसलें जो हैं हज़ारों एकड़ वो तबाह हो चुकी हैं। ये जो सैलाबी रेला जो है इसने इतना नुकसान कर दिया कि गरीब जो किसान जो है अब दोबारा जो है बहाल होने में उन्हें बहुत टाइम लगेगा। तो लिहाजा इंतज़ामिया को चाहिए, निगरान हुकूमत को चाहिए, जिन किसानों का नुकसान हुआ है उनके लिए एक बेहतरीन पैकेज का ऐलान करें। उनके नुकसान के लिए, उनके नुकसान में कोई कमी आ सके, उनकी परेशानी में कमी आ सके, क्योंकि एक तो वो फसलें जो उनकी तबाह हो चुकी हैं, दूसरा उनके घर तबाह हो चुके हैं, तीसरा जो है वो खुले आसमान के नीचे बैठकर जो है आपके यानी कि मदद के जो है मुंतज़िर हैं। किसान जो है वो आला हुकाम से पुरजोर अपील करते दिखाई दे रहे हैं कि खुदारा हमारी मदद के लिए आया जाए। हमारे जो लाखों रुपए का जो नुकसान हुआ है, फी किसान का जो लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, उन्हें उनके आकर कोई बेहतरीन उनके लिए पैकेज का इंतज़ाम किया जाए ताकि उनकी परेशानी में कुछ कमी आ सके। जी,
खबर शामिल करें तिरिंडा मोहम्मद पनाह से, जहां महंगाई का जिन बेकाबू हो गया, अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। 2 हफ्ते के दौरान चीनी की कीमत में 30 से 40 रुपए फी किलो तक इजाफा हो गया। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे गुलाम अली से। जी गुलाम, बताइएगा क्या कहना है शहरियों का? दीगर शहरों की तरह तिरिंडा मोहम्मद पनाह शहर में भी महंगाई का जिन जो है बोतल से बहर आ गया है। तमाम अशिया और नोश की कीमतें आसमान को छू रही हैं। दिहाड़ीदार तबका और मजदूर जो है वो शदीद परेशान दिखाई देते हैं। मुसलसल 2 हफ्तों से जो है चीनी की कीमतों को पड़ लगे हैं। 120 और 30 रुपए फी किलो में फरोख्त होने वाली चीनी की कीमत जो है 160 रुपए तक जा पहुंची है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं जो इस वक्त एक किराना शॉप पर खरीदारी के लिए आए हुए हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं। जी बताइएगा, कुछ ही दिनों के दौरान जो है 2 हफ्तों के दौरान चीनी की कीमत में फी किलो 30 से 40 रुपए इजाफा हो चुका है, क्या कहेंगे? जी, इस हुकूमत के आने से महंगाई मजीद ज्यादा बढ़ चुकी है। हम ये चाहते थे कि शायद इस नई हुकूमत के आने से चीज़ों की रेट घट जाए, मगर अशिया खुर्दोनेश की कीमतें रोज़ ब रोज़ बढ़ रही हैं। दिहाड़ीदार आदमी तो ना तो बच्चों की तालीम करवा सकता है, ना ही खुर्दोनेश की चीज़ें खरीद सकता है। गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो चुका है। चीनी की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से क्या कहेंगे? दो हफ्ते पहले चीनी जो है 130 रुपए 120 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही थी। अब जो है चीनी की कीमत 160 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है। इस हवाले से आप क्या कहें? मुझे तो यही उम्मीद है कि शायद 170 या 200 तक ना पहुंच जाए। चीनी की खरीदारी आम आदमी के लिए नामुमकिन हो चुकी है। इसके साथ साथ घी, पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ रही हैं, इसके साथ साथ हर चीज़ का रेट बढ़ने की उम्मीद है। जी, शहरियों का ख्याल था कि साबका हुकूमत की कमियों कुताहियां जो है नई हुकूमत दूर करेगी और गरीबों के दुखों का मदावा करेगी, उनके जख्मों पर मरहम रखेगी। मगर साबका हुकूमत की रिवायात को बरकरार रखते हुए निगरां हुकूमत ने भी गरीब आवाम पर महंगाई का बोझ डाल दिया और रोज ब रोज जो है महंगाई बढ़ती जा रही है। उन्होंने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि खुदारा अशिया खुरनोश की कीमतों को कम किया जाए ताकि गरीब आवाम 2 वक्त की रोटी जो है वो पेट भर कर खा सके। जी नाज़रीन, आपको बताएं कि पैसों की खुमारी या ताकत का नशा। लाहौर के इलाके अस्करी 11 में निजी रेस्टोरेंट के स्टाफ पर ओबाश नौजवानों ने हमला कर दिया। गालम गलोच के साथ साथ थप्पड़ भी मारते रहे। तशद्दुद की वीडियो कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। SP कैंट और मुतल्लिका पुलिस वाक़े से लाइल्म रही। मज़ीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम साबिर, वीडियो में वाज़े नजर आ रहा है कि अमीरजादे निजी रेस्टोरेंट के स्टाफ को तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, तो इस पर बताइएगा कि कहाँ गई DHA की सिक्योरिटी और कहाँ गई मुतल्लिका पुलिस? जी बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि इतना बड़ा एरिया है और वहां पर ना ही तो पुलिस नजर आ रही है और ना ही बाकायदा तौर पर DHA की कोई सिक्योरिटी है। और अवाश नौजवानों की अगर बात की जाए तो वीडियो में देखा जा सकता है कि ये हेर का इलाका है अस्करी 11, जहां पर जो है वो 2 अफराद जो है वो जबरदस्ती एक निजी स्टोर के अंदर घुसकर गालम गलौज करते हैं और तशद्दुद का निशाना भी बना रहे हैं। और वहां पर मौजूद लोग वहां पर देख रहे हैं कि लोगों को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। हमारे जराये ने ये भी बताया कि तशद्दुद करने वाले जो है वो शराब के नशा में धुत थे और ये आपे से बाहर हो गए, जबकि इन्होंने बर्गर का ऑर्डर दिया था। जब बर्गर का ऑर्डर लेट होने पर जो है वो पहले इन्होंने बाहर गालिम गलोच की, तशद्दुद का निशाना बनाया, फिर दोबारा जो है वो निजी स्टोर के अंदर चले गए। वहां पर जाकर जो कोल्ड ड्रिंक देता है उसको भी थप्पड़ों की बारिश करता है। उसके ऊपर वहां पर मौजूद कई लोगों ने जो है वो इनकी मिन्नत समाजत की, लेकिन ये बाज नहीं है और वहां पर गालम गलोच भी करते रहे और कहते रहे कि आप हमें जानते नहीं है, हम आपको जान से मार देंगे, धमकियां भी देते रहे। अभी मेरी बात हुई थी SHO हेर से, उनका कहना था कि इस वाकये के मुतालिक हमें बिल्कुल भी इल्म नहीं था, जो कि अभी वीडियो मौसूल हुई है तो उससे पता चला है कि यहाँ पर बड़ी जो है वो ज्यादती की गई है, थप्पड़ों की बारिश की गई है, गालम गलोच किया गया है। उनका जो निजी स्टोर का एडमिन मैनेजर है उसको बुलाया गया है थाना में। अभी एप्लीकेशन जो है वो मौसूल हो जाएगी और मुकदमा दर्ज करके मुल्जमान की गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाएगी, क्योंकि वहां पर जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं। SHO का ये भी कहना था कि अगर उसी वक्त ये 15 की कॉल कर देते तो ये जो है वो निजी स्टोर उस जगह पे बना हुआ है जो कि चारों तरफ इसके गेट लगे हुए हैं, फौरी तौर पर गेट को बंद करके मुल्जमान की गिरफ्तारी बासानी अमल में आई जा सकती थी। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो इन्होंने वहां पर मार भी खाई और वीडियो जो थी वो भी वायरल की, जो कि कोहिनूर न्यूज को मसूल हुई थी। तो उनका ये कहना था कि अगर फौरी तौर पर 15 पर कॉल करते तो मुल्जमान गिरफ्तार हो सकते थे। अभी कुछ ही देर बाद जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा और मुल्जमान की गिरफ्तारी शुरू कर ली जाएगी, क्योंकि जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं। गाड़ी भी जो थी उसका भी नंबर हासिल कर लिया है पुलिस ने और बाकायदा तौर पर एक तकरीबन दर्जन से जायद जो लोग हैं
वहाँ का स्टाफ जिसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, गालम गलोच किया गया, वो इस वक्त थाना हेर में मौजूद है और दरख्वास्त दे रहे हैं इंदराज मुकदमा के लिए। उनका यही कहना था कि जो है वो 2 अफराद जो थे मुसल्ला थे और इसके अलावा जो है वो नशे में धुत थे और हमें गालम गलोच करके तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। बाकायदा तौर पर उसकी वीडियो भी जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल की गई है। जी ठीक है, मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी का अमल शुरू किया जाएगा। इस पर चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर तमाम तर तफसीलात से हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब आपको बताएं कि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की शेखुपुरा आमद पर आरटीओ शेखुपुरा बाबर सरफराज अल्फा, जीपीओ शेखुपुरा जाहिद नवाज मुरवत, डीपीओ कसूर तारिक अजीज सिंधु, डीपीओ ननकाना साद अजीज समेत अफसरानों और एहलकारों की जानिब से वालिहाना इस्तकबाल किया गया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने इस्लामी पेश की। तकरीब का आगाज पाकिस्तान के कौमी तराने से शुरू किया गया। तकरीब का अहवाल जान लेते हैं वसीम साबिर चीफ क्राइम रिपोर्टर की इस रिपोर्ट में। पंजाब पुलिस के सिपा सालार आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की शेखुपुरा आमद। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। जबकि आरपीओ शेखुपुरा समेत रेंज के तीनों डीपीओज और पुलिस के दस्तों ने आईजी पंजाब का वालहाना इस्तकबाल भी किया। आईजी पंजाब ने नए प्रमोट होने वाले पुलिस अफसरान को रैंक भी लगाए। तकरीब के इस मौका पर आरपीओ शेखुपुरा बाबर सरफराज अल्पा, डीपीओ शेखुपुरा जाहिद नवाज मरवत, डीपीओ कसूर तारिक अजीज सिंधु और डीपीओ ननकाना साद अजीज भी मौका पर मौजूद थे। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने अपने खिताब में पुलिस अफसरान और जवानों को खराज तहसीन पेश करने के साथ साथ पुलिस फोर्स को अवाम तक फौरी और बिला इम्तियाज इंसाफ की फराहमी की भी हदायत की। आखिर में तकरीब के पुरवकार मौका पर आईजी पंजाब का कहना था, हम करप्ट नहीं हैं। अगर हम करप्ट होते तो हम शहीद ना होते, हम गाजी ना होते। वसीम साबर, चीफ क्राइम रिपोर्टर, कोहिनूर न्यूज। खबर शामिल करें खेल के मैदान से। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा कि अफगानिस्तान की टीम आसान नहीं, उसके पास बेहतरीन स्पिनर्स हैं। लोगों को लगता है कि अफगानिस्तान आसान हरीफ है, हकीकत ऐसी नहीं है। 3 मैचेस जीतकर जो मोमेंटम मिला है उससे एतमाद मिलेगा। अफगानिस्तान से वनडे सीरीज जीतने के बाद गुफ्तगू करते हुए बाबर आजम ने कहा कि जब आप नंबर 1 बनते हैं तो खुशी होती है। ये पूरी टीम की मेहनत और परफॉर्मेंस का नतीजा है। उन्होंने मजीद कहा कि पहले भी नंबर 1 हुए थे मगर फिर नीचे आए, अब दोबारा टॉप पर हैं। हमने सारे मैचेस अच्छे खेले हैं। बाबर आजम का कहना है कि टीम में हर कोई एक दूसरे को बैक कर रहा है। अगर बैटिंग नाकाम होती है तो बॉलर्स काम कर जाते हैं। प्लेयर्स का आपस का इत्तेहाद हर सूरत हाल में काफी मददगार साबित होता है। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए KN न्यूज।